Today we'll be revising a very important topic, that is PCR, polymerization chain reaction. So let's go through the first page very quickly and then I'll explain. Read the first page quickly. This is a very important reaction in biotechnology. PCR stands for polymerization chain reaction. We have already done what is polymerization in junior classes. Okay, one thing multiplying, that is polymerization. We need to understand why it is called a chain reaction. You have to quickly read through the first page. It's just a revision. We'll revise. PCR was given by Gary B. Mullis. This is used for amplification. That means it is used for increasing the number. Okay. Suppose you have a DNA which you got from a crime scene. So this DNA can be isolated only from WBCs. We know that DNA cannot be isolated now from other sources. They can be isolated only from WBCs. So if you talk about RBCs and platelets, they do not have nucleus. And the WBCs are very less in number. So the DNA is obviously, the DNA obtained is also very less. So very few RBCs are available, and that is why DNA needs to be increased. This process is what we call as PCR, that is polymerization chain reaction. There are 3 steps of PCR. See the first step on your screen, that is denaturation. We'll go into details of this. See what is drawn on the screen, denaturation. Hmm. We were revising
PC, I'm taking up two important topics of biotechnology. The first one I did yesterday was vectors, and now we are Ma'am, doing about, ma'am, you yes. said that we will start with molecular basis of inheritance. But I have just taken up some important topics of different chapters. There are two important topics in biotechnology. One I took yesterday, one I'm taking up today. And in molecular basis of inheritance also, we'll take up all the important topics only. Like you want to do the entire chapter? No, ma'am, not entire That topics. is why, yeah, I have selected some topics only, like transcription, translation, genetic code. Some things are there which are actually important, which keep मैम repeating. थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स भी बता दिएगा. हर्षित चेस वाला, ओके, ठीक है, वो तो मैं अभी ओरल इसकी लास्ट में 15 मिनट्स वाली एक्सपेरिमेंट जो टाइम है उसी में बता देते हैं. अच्छा, ये बताइए, व्हाई इज पीसीआर डन? वेरी क्विकली, वन टॉपिक फ्रॉम वेयर वी ऑलवेज गेट क्वेश्चंस. व्हाई इज पीसीआर डन? पर्पस ऑफ पीसीआर बताओ बेटा, एनी आइडिया? मैम पता नहीं, याद नहीं है. वेरी गुड बेटा. एक वेक्टर्स और एक पीसीआर, these are two topics in biotechnology जिसको बहुत properly you need to study. You cannot ignore them. चलो बहुत जल्दी से करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर? ये तो याद होगा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर? मैम पॉलीमर चेन रिएक्शन. Harushi, what happened? Sleeping or just participated and gone? Harushi? Yes, ma'am. Acha, sleeping. Hmm? No, ma'am. I, I was not expecting anybody. Seriously, today. Yesterday also the strength was the same, so I was wondering ki most of you have turned up. Okay, since you have come, very quickly. PCR full form, she's already told me, polymerase chain reaction. You've done in junior classes, polymerase means many. So we have to do a chain reaction by which DNA become many. The polymerase. Polymerase over here does not mean monomer monomer जुड़ के ऐसे करके basically, but यहाँ पे polymerization मतलब we need to have many DNAs. And why PCR is done, beta? Supposing we get a small sample of DNA from a crime scene. It is a very small sample, very very small sample or a minute sample. And during experimentation, हो सकता है कि वो sample damage हो जाए. While we are trying to detect or we are trying to check कि किसका DNA है. So what do we do is we prepare multiple copies of the DNA for safe experimenting. Okay, for safe analysis. So this process is what we call as PCR. पीसीआर becomes very important क्योंकि डीएनए कहाँ मिलता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर आपके प्लेटलेट्स में? वेयर इज डीएनए फाउंड मेनली? WBC. WBCs. RBCs and platelets, they do not have nucleus. Do they have nucleus? बहुत बढ़िया, कुछ भी याद नहीं है इसका मतलब. चलो जल्दी से देखो. पहले तो PCR full form is polymerase chain reaction. It was given by whom? Carrie B. Mullis. This is very important. इसे ignore मत करो. This is used for amplification. That means it is used to increase the number of DNA. Now we know that when we compare the number of RBCs and WBCs in the human body, तो कौन से कम होते हैं, RBC और WBC? WBC. WBC. तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है. एक तो डीएनए इज फाउंड ओनली इन WBCs. ओके, ऊपर से WBCs का नंबर भी बहुत कम होता है. सो वी हैव वेरी फ्यू WBCs अवेलेबल. तो क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डीएनए. यानी जो डीएनए सैंपल हमें मिला फ्रॉम क्राइम सीन और फॉर एनी एनालिसिस, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी पड़ेंगी हमें. बेटा याद रखो कि आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है. ओनली WBCs हैव अ न्यूक्लियस. सो यू हैव योर डीएनए ओनली इन WBCs. सो WBC एज इट इज नंबर में बहुत कम है. ऊपर से क्राइम सीन में कोई 500 ग्राम्स 1 kg डीएनए तो छोड़ के जाएगा नहीं क्रिमिनल. It's a very small sample of DNA, the one which we get.
and we cannot take a chance. We cannot take a chance because हो सकता है कि what happens is the sample that we have got gets destroyed. So we do this process of PCR. Purpose समझ में आ गया? Why is PCR done? Yes, ma'am. It is Yes, ma'am. it is used for amplifying, that means increasing the number of DNA samples. So we have different steps in this process. The first is denaturation. Okay, how many steps of PCR are there? 3 steps of PCR. ठीक है बेटा, जल्दी से. First step is denaturation. Denaturation means to finish the original nature of DNA. Denature कर देना, like you must have done कि enzymes after a certain temperature get denatured. What do you mean by denatured? उनका स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो व्हेनेवर वी यूज द वर्ड डीनेचर्ड, इट मींस व्हाट? चेंज इन व्हाट? Structure. Yes, it means the change in structure. And what is the heading of the first step that we are doing? Denaturation of what? What is the first step of DNA. PCR? DNA. Yes, the first step is denaturation of DNA. That means the structure of DNA is going to change. You know that DNA is single stranded or double stranded? Double. डबल स्ट्रैंडेड. सो ये देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर गोइंग टू ब्रेक डाउन. कैन यू सी? एट हाई टेम्परेचर अगर आप ले जाओगे तो क्या क्या होगा? 3 चीजें यूज करनी है आपको. यू हैव टू यूज व्हाट? यू हैव टू यूज HCl. डाइल्यूट HCl ले लो या डाइल्यूट बेस ले लो, कोई भी, इधर अ डाइल्यूट एसिड और अ डाइल्यूट बेस. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाई टेम्परेचर. as soon as you will create these conditions, high temperature पे automatically which bonds will break? Hydrogen bonds will break. Hydrogen. Is it okay? So आप इसको हीट करो, कहाँ तक ले जाओ? ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा मतलब यू हैव टू कीप अ रेंज बिटवीन 90 to 94. 90 से पहले हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं करेंगे, 94 के बाद भी नहीं नॉर्मली करते हैं. तो ऑप्टिमम रेंज हमारी ये रहती है, कितना? 90 to 94. बट हीटेड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. ओके, ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम तक आप इसको हीट कर रहे हो. यू हैव टू हीट इट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. इफ फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर आप हाई टेम्परेचर पे इसको रखोगे तो एक प्रॉब्लम और आएगी. द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स ना, okay, they will also get damaged. We have to only break which bonds? Hydrogen. Hydrogen. Hydrogen bonds, so that these Hydrogen. two strands, very good, these two strands get separated. But if you heat it for too long at high temperatures, then there is a chance of the phosphodiester bonds also getting damaged. So the most optimum temperature range I told you is 90 to 94, but the most optimum temperature is 92 degrees Celsius. Children, very quickly, what is the full form of PCR? Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. बेटा बायोटेक्नोलॉजी में 3 चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इंटरनल एक्सटर्नल हर एग्जाम के लिए. वेक्टर्स, व्हाट आई डिड यस्टरडे, एंड देन दिस व्हाट आई एम डूइंग टुडे, और एक बायोरिएक्टर्स पढ़ लेना. उसमें बहुत सिंपल है. आई डोंट थिंक इफ यू वांट आई डू इट, अदरवाइज खुद पढ़ लेना. बायोरिएक्टर्स इज समथिंग सिंपल. हु गिव दिस प्रोसेस एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्विकली. Ma'am, used for amplification. Who gave this? Carrie B. Mullis. Abhiru, why do we need to amplify DNA? मैम क्योंकि मैम जैसा आपने बताया था क्राइम्स जगहों पर मैम जहाँ बहुत ज़्यादा सा है पार्ट हमें ब्लड का मिला है तो हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत होगी, तो इसलिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी हमने डिस्कस करी थी बेटा रिगार्डिंग डीएनए की, वो बहुत कम होते हैं. वो क्या पॉइंट था? अभिरूप जॉइंड अस लेट. आरुषि अरीबा बताइए. WBC. Ma'am. हाँ, यस, WBCs वाला. बेटा ब्लड सैंपल अगर मिला भी तो पूरा ब्लड सैंपल हमारे काम का नहीं है ना. हमारे काम के लिए Yes, सिर्फ कौन से ma'am. सेल्स है? WBC. Yes, even if we got 2-3 drops, then the entire 2-3 drops are of no use to us. हमारे लिए main concern is only WBCs. RBCs and platelets, they do not have nucleus. So हमें DNA extraction is possible only from WBCs. And WBCs are very less in number. So this process becomes very important. चलिए जल्दी से बताइए, which is the first step? Denaturation of DNA. Denaturation of DNA. Remember the word denaturation always means original structure destroy हो जाना.
So what is happening in denaturation? The main thing which is happening is separation of the two strands of DNA. How are these two strands going to separate? Conditions we have discussed. What should be the optimum range of temperature? 90 to 94. 90 to 94. Dilute HCl ले लो, dilute base ले लो, कोई भी दोनों में से, and you can take a high temperature. High temperature, which bonds will break? Which are there between two strands? Hydrogen. Hydrogen. But we should not continue to keep this strand at a higher temperature for a long time. Why? Because phosphodiester bonds will break. Yes. And the most optimum temperature for separating these two strands is 92. 92. Though we have a range, इसमें हो जाता है, but सबसे अच्छे यही temperature. No, चलिए. The next stage, if you see, second step is called what? Annealing Annealing. or hybridization. It's almost the same. Annealing or hybridization. अच्छा, hybrid का मतलब, when the first thing which comes to your mind when we use the word hybrid is what? Mixed and new. Mixed and new. Yes, mixed. Something being added up, that is hybridization. चलिए. The new DNA strands to be synthesized on two separate strands. अब बेटा ये दो strands separate हो गए थे, ये देखो, ये अलग अलग हो गए. अब कैसे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे? इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहाँ पे आ जाए और इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहाँ पे आ जाए, तो ये एक डीएनए से कितने हमारे पास? दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाएंगे. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू बाय दिस प्रोसेस. नाउ see, now you have to synthesize a new DNA. For this, the most important thing which is needed is a primer. What is needed is Primer. primer. Okay, what is needed is primer. देखो, ये आपका ये स्ट्रैंड था जो सेपरेट हो गया था, 3 प्राइम 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम 3 प्राइम है. प्राइमर होता क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्राइमर. सी, प्राइमर इज अ स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए which initiates the DNA nucleotides to come there. Primer is a small strand of DNA. जैसे हम लोग क्या होता है, हमारा एक फ्रेंड कहीं पे खड़ा है तो सब लोग, दूसरा जाके भी वहीं खड़ा होगा, तीसरा भी वहीं जाके खड़ा होगा, बिकॉज वो कौन है? सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे फ्रेंड्स हैं, सबकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है. हमें क्या चाहिए? DNA का एक strand. I don't know why Raman sir is calling so many times. बेटा चलो, लेट मी एक्सप्लेन, देन आई स्पीक टू हिम. जल्दी देखो, अगर सारे के सारे डीएनए हमको एक जगह पे, बेटा डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए. ओके, सो वी नीड समथिंग जो न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करके यहाँ पर लेकर के आए. सो दैट वर्क इज बीइंग डन बाय दिस प्राइमर. तो प्राइमर अगर मैं किसी क्लास 10th के बच्चे को खड़ा कर दूंगी तो क्या क्लास 12th के बच्चे जाके वहां पे खड़े होंगे? विल दे गेट अट्रैक्टेड टू दैट प्लेस? No, ma'am. No. I need somebody of your own class, your own section. दो लोग खड़े होंगे तो और भी आ जाएंगे. So what exactly I am doing is the same. I needed nucleotides of DNA. So मैंने DNA का ही एक small strand लिया यहाँ पे, which is going to act like my primer. Reason being, ये same होगा तो और nucleotides automatically यहाँ आएंगे. So what is a primer? It is a small strand of DNA which initiates the DNA nucleotides to come at this place. Okay? ये देखो. अब हमें ये देखना है, क्या देखना है हमें यहाँ पे देखो, which end of the parent strand of DNA, यहाँ पे देखो जल्दी से, will RNA primer be formed? देखो, यहाँ तो RNA primer यहाँ पे आएगा. ये फर्स्ट वाला जो स्ट्रैंड है ना, 3 प्राइम प्राइम, ये वाला देखो, दोनों में प्राइमर की लोकेशन देखो बेटा. ये आपका फर्स्ट स्ट्रैंड है, कौन सा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम. अब यहाँ पे जो फर्स्ट केस है, तो प्राइमर कौन से उस पे आ रहा है? 3 प्राइम पे या 5 प्राइम पे? 3 prime. ये आपका प्राइमर है 3 3 प्राइम पे. prime. वेरी गुड. एंड अब सेकंड केस पे चलते हैं, तो ये रहा आपका प्राइमर. कौन से वाले पे आया ये? 3 prime. 3 3 प्राइम पे. prime. क्यों आया? क्यों आया 3 प्राइम पे?
क्यों आया दोनों जगह 3 प्राइम पे आ रहा है? मैम मैम आपने कहा क्योंकि था कोई नई चीज आती है तो फंक्शनल ग्रुप वाली साइड पे अटैच होती है। ओके, वेरी गुड। आप भी कुछ कह रहे थे अभी, रो बताओ। मैम यही कहता है अलाइनमेंट ऑपोजिट होता है, तो एक का लेफ्ट होगा 3 प्राइम तो दूसरे का 3 प्राइम राइट होगा। बेटा न्यू मॉलिक्यूल्स जो भी बनते हैं हमेशा याद रखना, ये ऊपर लिख के दिया है मैंने, न्यू मॉलिक्यूल्स यस ऑलवेज मैम। ग्रो फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड रीजन वही फंक्शनल ग्रुप वाली बात आ जाती है। देखो, नई चीज जो भी बनेगी वो हमेशा कहाँ से जाएगी, ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बढ़ेगी। अब यहाँ पे ये 3 प्राइम है तो प्राइमर का ये कौन सा एंड हो गया? 5 प्राइम। 5 प्राइम। इजंट इट? स्ट्रैंड का 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम है, तो यहाँ भी जो न्यू चेन बन रही है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रही है। यहाँ भी हमारा ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम है, ये जो न्यू चीज न्यू मॉलिक्यूल्स ऐड ऑन होंगे तो ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही ऐड होंगे। सो बेटा ऊपर वाले स्ट्रैंड के 3 प्राइम के यहाँ पे प्राइमर अटैच हो गया, नीचे वाले स्ट्रैंड के भी 3 प्राइम के ये अटैच हो गया। सिंस दिस इज द 3 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ये प्राइमर का 5 प्राइम होगा। यहाँ पे भी सेम, स्ट्रैंड का 3 प्राइम है तो प्राइमर का 5 प्राइम होगा। नाउ व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड नाउ? Listen, RNA nucleotide primer for the first step, for this step, sorry, the second step that we are doing, what all is needed? RNA nucleotide primer is needed, enzymes are needed, and temperature comparatively हमें low करना पड़ेगा। First step पे कितना था? 90 to 90 to 94। 94। Yes. Now we'll have to lower down the temperature somewhere at a range of 50 to 60 degree, although 56, 57 is the most appropriate temperature. This hybridizing of this primer in the DNA strand is what we call as annealing. आपने क्या अटैच कर दिया यहाँ पे? एक प्राइमर अटैच कर दिया, so ये हाइब्रिड हो गया। This process is what we call as annealing. What is it called? Annealing। Annealing। Annealing. Now listen very carefully. What was the first step? Denaturation। Denaturation। Denaturation. That means we were changing the original structure of the DNA. And how did we separate the two? Original structure means double stranded को हम strand separate करेंगे. How did we do that? Tell me quickly. मैम 90 to 94 डिग्री सेल्सियस और स्मॉल बेस या थोड़ा सा माउंट HCl। Yes, HCl and टेम्परेचर हाई कर दो तो कौन से बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे? हाइड्रोजन। Hydrogen. If you continue to keep it for 90 to 94 higher range, then we have a problem कि कौन से bonds और break कर सकते हैं जो नहीं करने चाहिए? फॉस्फोडाइएस्टर। Phosphodiester bond. So our first step is done. The first step we called was denaturation. That is done. What was the name of the second step? एनीलिंग और हाइब्रिडाइजेशन। Annealing और Annealing or hybridization. hybridization. बेटा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया। ये देखो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप। अगर आप लिखोगे तो प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिए। एट दीज आर द कंडीशंस ऑफ द फर्स्ट स्टेप, ओके। एंड उसके बाद कंक्लूजन में एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेप क्या हो गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैव ब्रोकन एंड द स्ट्रैंड्स हैव गॉट सेपरेटेड। इट इज इन दिस कंडीशन कि हम आगे बढ़ेंगे इन द सेकंड स्टेप व्हिच इज कॉल्ड एनीलिंग। Now new DNA strands are to be synthesized basically. हमारा hybridization में हमने क्या करना है? New DNA strands have to be synthesized on these two separated strands. And what is required is a primer. What is a primer? We just discussed. It's a small strand of what? RNA। DNA, RNA, कुछ भी ले सकते हो. DNA और RNA. Which initiates what? Which initiates the nucleotides to come there. अच्छा बेटा ये बताओ, टेम्परेचर हमने कितना कम करा? पहले कितना था? 90 to 94। 94। अब कितने पे ले गए हम लोग? 50 to 60। 50 to 60. And now this hybridization is done. This process is also known as what? It is called as annealing. Now we come to the, in the beginning I told you there are 3 steps in this. So पहला हो गया, दूसरा हो गया, we come to the third step. This is the last step. This is called extension. What is it called? Extension. Now the DNA nucleotides will bind with the primer. देखो, ये आपका क्या था? ये क्या लगा था यहाँ पे? Primer. ये भी क्या है बेटा आपका? Primer. अब DNA nucleotides will keep coming and they will keep attaching to the primer. कैसे हो रहा है? इसको देखो. Again टेम्परेचर को थोड़ा हाई करना पड़ेगा.
72 डिग्री इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर. पहले बहुत हाई, फिर बीच वाले स्टेप के लिए लो, एंड सेकेंड स्टेप के लिए फिर थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा. वी हैव टू टेक द टेम्परेचर टू ऑलमोस्ट हाउ मच? 72. 72 degree. 72. And in this step, what we need is a very important enzyme. The name of the enzyme is DNA polymerase. Okay, what is the name of the enzyme? DNA polymerase. DNA polymerase. अच्छा, अब जब हमारी बॉडी की बात करते हैं तो 72 डिग्री सेल्सियस कहाँ से आएगा? In our body, we know that this enzyme DNA polymerase, they do not work at 72 degree. Our body temperature is what? Around 37. Above this Yes, temperature, 36. all the enzymes तो क्या हो जाते हैं? Denatured हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? Yes, So ma'am. हमारे पास, very good, we need a thermostable enzyme. So such an enzyme is isolated from a thermophilus bacteria. हमारी बॉडी से तो हम ये एंजाइम ला ही नहीं सकते ना. कौन सा एंजाइम? डीएनए DNA पॉलीमरेज. polymerase. ला ही नहीं सकते क्योंकि हमारी बॉडी में तो 37 डिग्री के ऊपर जाते ही सारे एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाते हैं. सबका स्ट्रक्चर जो है वो स्पॉइल हो जाता है. इफ द नॉर्मल रेंज इज दिस ओनली, बियॉन्ड दिस इट इज नॉट पॉसिबल. सो ये वाला जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज विच वर्क्स एट बेस्ट दिस डिग्री टेम्परेचर, वो हम कहाँ से लेकर के आएंगे? इट्स अ थर्मोस्टेबल एंजाइम बेट. उसके ऊपर हीट का कोई फर्क नहीं हो रहा है, वो डीनेचर नहीं हो रहा है. Such an enzyme you have to isolate from a thermophilus bacteria. So where will you get this enzyme from? Which kind of bacteria? Thermophilus. Thermophilus bacteria. The enzyme is Thermus aquaticus, and you get it from thermophilic bacteria. Thermus aquaticus. Which one you're getting? Thermus aquaticus. ये Aquaticus. कहाँ पे ग्रो करता है? वो नाम से ही पता चल जाएगा. Aquaticus means it is growing in hot water springs. In this bacteria is found in hot water springs where the temperature is almost 100 degrees Celsius. So all the enzymes in this bacteria automatically thermal resistant हो गए होंगे, isn't it? Because Yes, it is ma'am. surviving very comfortably at a range of 100 degrees Celsius. So all the enzymes which are present in this bacteria, ये सारे thermal stable हो गए. So we are going to isolate DNA polymerase from this bacteria. And क्या हमने किया बेटा? कौन सा वाला लेके आए हम लोग? Taq polymerase. This is one which can work at very high temperatures. Please remember the name of this enzyme. What is the name? Polymerase. Taq Tag polymerase. polymerase. There is one more enzyme which is normally used. This is also thermostable. This is Vent polymerase. What is the name? Vent Vent polymerase. polymerase. This is isolated from Thermococcus litoralis. This is also a bacteria. So basically हमें चाहिए ऐसा एंजाइम जो इतने डिग्री पे काम कर जाए, 72 डिग्री पे. सो हमारी बॉडी से तो काम चलेगा नहीं. वी कैन नॉट टेक एन एंजाइम फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी बिकॉज वहां जाके तो इतने पे हमारे एंजाइम्स तो डीनेचर हो जाएंगे. सो वी कैन नॉट यूज आवर ओन एंजाइम्स. वी नीड टू हैव एंजाइम्स विच आर थर्मोस्टेबल. So we have taken these enzymes, Taq polymerase, and we've taken Vent polymerase. We've taken these two enzymes because they are thermal resistant. They can actually tolerate a higher range of temperature. That is why we call them as what? We call them as thermal resistant kind of enzymes. Okay. Nucleotide bases, these are to be added by the DNA polymerase to the growing chain. अब हमने ये पढ़ा था कि ये प्राइमर लग गया. चलो फिगर देखो. ठीक है. दिस इज योर प्राइमर. ये जो शेडेड वाला पार्ट है ये क्या है? प्राइमर. ये क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे? Nucleotide. Nucleotide. Nucleotides. Who is going to help? DNA polymerase here. ठीक है. ये एक चेन बन जाएगी पूरी की पूरी. ठीक है. And what is DNA template? This double stranded DNA that needs to be amplified. ये जो आपका नया जो स्ट्रैंड बनेगा, एम्पलीफाई होना, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने हैं. दिस इज योर डीएनए टेम्पलेट. व्हाट इज इट कॉल्ड? व्हाट इज दिस? डीएनए टेम्पलेट. तो हमें क्या क्या चाहिए बेटा इस प्रोसेस के लिए? एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, सूटेबल एंजाइम चाहिए जो न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे लाके बाइंड करता जाए, एंड एक टेम्पलेट बनता चल जाएगा. एंड ऑफ कोर्स हमें क्या चाहिए? प्राइमर्स चाहिए. ओके. what is the main important thing who's going to start this process? It is these primers. Primer. चलिए. अब एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ये बन गया ऊपर वाले के साथ, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड नीचे वाले के साथ बन गया. तो इस स्टेप के बाद आपका डीएनए क्या हो गया?
डबल। एक डबल हो गया ना बेटा, एक सिंगल स्ट्रैंड था, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड था। अब हमारे पास कितने डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गए? 2। वी हैव गॉट 4 नहीं, डबल स्ट्रैंडेड कितने आ गए? मैम 2 मैम, 4 कौन बोला? अच्छा, 4 स्ट्रैंड्स हैं एंड 2 डीएनए हो गए। अच्छा, अगर मैं यही फर्स्ट स्टेप पे फिर चली जाती हूँ और मैं इसको फिर से सेपरेट कर देती हूँ, तो इसमें से कितने और मिल जाएंगे हमें, इन 2 में से? 2। और इनसे भी फिर 2 में से कितने मिल जाएंगे? 2 डीएनए। आप मुझे सीधी सी एक बात बताओ कि मैंने 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के लिए, ओके, I took 2 strands of DNA. 2 strands I'm saying. I'm not saying 2 double-stranded DNA. ठीक है? Don't get confused. यस I've मैम। taken 2 strands of DNA. So after 3 processes of PCR, 3 steps of PCR, 3 बार PCR process करा, तो how many DNAs, double-stranded DNAs will I get? Please 2 listen to the question. 2 डबल सोच के, स्टैंडर्ड डीएनए। 3 steps के बाद, after 3 steps, I mean, after 3 processes, 3 PCRs, not after मैम 3 2, steps of PCR. मैम आप 2 सिंगल स्ट्रैंड शुरुआत में दे रही है ना? देखो, हमने 2 सिंगल स्ट्रैंड्स लिए, हमने डबल स्ट्रैंडेड यस डीएनएज मैम। नहीं दिए आपको। 2 सिंगल, गर्ल्स प्लीज स्पीक आउट, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनएज लिए हैं एंड हम लोग 3 बार पीसीआर कर रहे हैं, 3 स्टेप्स नहीं कर रहे पीसीआर के, हम लोग 3 बार पीसीआर रिएक्शन कर रहे हैं। So how many double stranded DNAs will I get after 3 times 6। of PCR? अच्छा, 6। और लोग बताओ, अदर्स आल्सो स्पीक यस आउट। मैम 6। मिलेंगे। मैम 6। पक्का सबको 6 ही लग रहा है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ठीक है? I am giving you 2 double stranded DNAs. I'm not giving 2 strands, children. I'm giving 2 DNAs to you, 2 double stranded DNAs. And again, I'm going to do the PCR 3 times. 3 times PCR reaction is being done, but this time not 2 strands. There are 2 DNAs. How many DNAs will I get? Double stranded DNAs. मैम बात तो वही होगी ना, डीनेचुरेशन से सेपरेट तो हो ही जाएंगे। तो बेटा 2 सेपरेट होंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 होंगे ना। मैं आपको स्टार्टिंग में 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनएस दे रही हूँ, तो डीनेचुरेशन के बाद सेपरेट हुए तो कितने सिंगल स्ट्रैंड्स मिले? यस मैम 4 हो जाएंगे। 4 हो जाएंगे। अब सोचो, शुरू में तो बेटा अगर आप 2 स्ट्रैंड ले रहे थे तो 2 स्ट्रैंड थे, यहाँ पे 2 डीएनए दे रही हूँ, 2 डीएनए का मतलब 4 स्ट्रैंड, 4 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन जाएंगे ना। अब बताओ कितने हो गए? 2 DNAs I am giving you, 2 double stranded DNAs. Don't know? मैम कर रहे हैं। कर लो, कोई बात नहीं। मैम अगर सिंगल स्ट्रैंड मिला तो उस पे डीनेचुरेशन से क्या होगा? नहीं, मैंने आपको डीनेचुरेशन के बाद दिए ना, आगे के स्टेप्स आप खुद करोगे, बाकी दोनों पीसीआर के। मैम 12। ओके, ही सेज 12। व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ मैम 12 होने चाहिए, अगर एक उसमें 4 बन रहे तो। ओरली डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या है। 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिए, यानी बिफोर माय रिएक्शन स्टार्टेड डीनेचुरेशन करके कितने स्ट्रैंड्स आ गए? मैम 4 टोटल स्ट्रैंड आएंगे अगर हम सिर्फ 4 स्ट्रैंड्स आ डीनेचुरेशन गए, की। ठीक है। मतलब हमारे पास पीसीआर शुरू करने से पहले, फर्स्ट स्टेप से पहले हमारे पास कितने स्ट्रैंड्स हैं? 4। हमने 4। डीनेचुरेशन, हमने सिर्फ डीनेचुरेशन ही तो करा, 2 स्ट्रैंड डीएनए यस दिए, मैम। यानी हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। फर्स्ट स्टेप करते ही हमारे पास 4 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आ गए। अब बाकी दोनों प्रोसेस
कंप्लीट जब हम कर लेंगे, एनीलिंग कर लेंगे, लास्ट एम्प्लीफिकेशन कर आके, फिर हमारे पास 4 से कितने, 4 के बाद कितने, 4 डीएनएज आ गए आपके पास। कितने आ गए? 4। आफ्टर फर्स्ट स्टेप कितने हो गए बेटा? 4 डीएनएज। अब जब हम सेकंड स्टेप में एंटर करेंगे और डीनेचुरेशन करेंगे, ठीक है, तो 4 डीएनए से कितने स्ट्रैंड्स आ गए? 4 डीएनए से 8 स्ट्रैंड्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रही हूँ आपको। 4 डीएनएज का मतलब 4 डबल स्ट्रैंडेड डीएनएज। तो व्हेन यू आर एंटरिंग द सेकंड स्टेप ऑफ पीसीआर, आपके पास कितने स्ट्रैंड्स हैं? 8 स्ट्रैंड्स हैं। 8। एट द एंड ऑफ पीसीआर आपके पास कितने डीएनए बन जाएंगे? 8 डीएनए। वेरी गुड, 8 डबल स्ट्रैंडेड डीएनएज बन गए। एंड व्हेन आई एंटर द थर्ड टाइम पीसीआर रिएक्शन, तो 8 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से कितने स्ट्रैंड्स आ गए मेरे पास? 16 डीएनए बने। 16 स्ट्रैंड्स आ गए। तो कितने डीएनए बने? 16 डीएनए बने। आप लोग 12 कैसे बता रहे थे? अरे मैम वो थर्ड स्टेप में गलती कर दी। 4 जब 8 चलो। वो बने थे, 8 तक बन गए। अच्छा ठीक है, चलो डू वन मोर, एक और करो। 5, वी गॉट 5 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, मैंने कोई स्टेप नहीं करा, डीनेचुरेशन कुछ नहीं करा, नॉर्मल फ्रॉम अ क्राइम सीन हमें 5 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गए। आप 2 पीसीआर करो, सिर्फ 2। मुझे बताओ कितने डीएनए स्ट्रैंड्स हो जाएंगे? You got 5 double-stranded DNAs after 2 times PCR reaction. How many double-stranded DNAs will you get? I'm 20. चलिए देखते हैं। Abhirup says 20. What about others? Yes, ma'am, 20. Arushi also says 20. Ariba, you agree? Yes, ma'am. She's not sure. I think she's not calculated. कैसे? Ariba, tell me how. Explain. हम पहले 5 स्टेप we के बाद started. 10 हो जाएंगे हम्म, और फिर उसके बाद बाकी के 2 स्टेप के बाद और बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली डबल हो रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें? डबल हो रहे हैं। डबल ही तो हो रहे हैं। तो इसमें इतना ज्यादा कोई सोचने की बात ही नहीं थी। इफ यू सी, ये हो क्या रहे हैं? ये डबल ही तो हो रहे हैं, इसमें इतना ज्यादा कोई वो है ही नहीं है। Anyways, this is all about PCR. Purpose of PCR we know. Who did PCR we know. 3 steps of PCR we know. Just the headings you tell me. Which was the first step of PCR? Denaturation. Denaturation. Which मैम was the किसने second किया था step? बता दीजिए। आपके फ्रेंड्स बताएंगे जिन्होंने टाइम से क्लास ज्वाइन करी। आप लेट आए हो, बताओ बेटा। मैम कैरी एक चीज मैम मैं 7:45 से डालना स्टार्ट करता हूँ पासवर्ड। मैम ये दिखाता रहता है गलत पासवर्ड कल भी दिखा रहा था। बाकी लोग कैसे ज्वाइन कर लेते हैं बेटा? मैम वो लोग आज भी फोन ये से लोग तो शायद ज्वाइन करते कर होंगे। रहे थे। मैम मैं तो लैपटॉप से करता हूँ। मैम लैपटॉप में मेरी जूम है, तो मैम डायरेक्ट मैं लिंक कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप है मेरे फोन में। तो मैम लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ तो मुझे पासवर्ड और मीटिंग आईडी डालनी पड़ती है। तो मैम वो पासकोड गलत दिखाता रहता है। तो कुछ सिंक्रोनाइजेशन में कमी है मेरे लैपटॉप एंड आपके लैपटॉप में प्रोबेबली। और मैम एनीवे, कल हो क्या रहा था मैम, रिकॉर्डेड वीडियो चल रही थी वो। कल कोई आया ही नहीं था। नहीं तो मैम, मैंने मैं आपको और बताया, खुशी थे तो वो रिकॉर्डेड वीडियो चल रही थी, फिर आप भी नहीं थी। मैं पूरा टाइम जूम पे थी, बट कोई आया ही नहीं। आपने एंटर किया लेकिन आप कुछ बोले ही नहीं। आरुषि एंड अरीबा वर देयर इन द मीटिंग, पर कोई कुछ बोल मैम ही नहीं रहा था। मुझे लगा यू आर डमी, वो जो डमी एंटर कर जाते हैं, ऐसे लगा कि शायद डमी है। अभिरूप का आंसर तो दे दे। यस, हम बोला जल्दी से बताओ। लिख लिया। लिख लिया, ओके बेटा। वी स्टिल हैव टाइम। मैं जल्दी से आपको हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट फटाफट रिवाइज करा दे रही हूँ। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, हर्षे का पूरा नाम बताओ जल्दी से। डोंट इंसल्ट हिम, बेचारे ने इतनी मेहनत करी है। नहीं याद? जो नहीं याद है जल्दी से बताते जाओ कि नहीं याद है, टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ जी, डिवीजन में हर्षे's full name is Alfred Hershey. Is it okay? We are doing which experiment? Hershey cheese. Yes, Alfred Hershey and Martha Chase. Please speak the names. Hershey Chase कहाँ से आया? Hershey comes from, what is the name of the person? Alfred Hershey.
Alfred Hershey. Alfred And Hershey. the other one, very good. The other one is Martha Chase. What was the Martha purpose of Hershey-Chase experiment? Why was this experiment done? To prove that DNA is the genetic material. मैं So बस this, एक सेकंड में आता हूँ. these two people, Alfred Hershey and Martha Chase, they did an experiment, and उनका main purpose क्या था experiment में, क्या prove करना चाहते थे वो लोग? That the real material, genetic material is actually DNA. बेटा इन्होंने जो भी experiments करी, किसके साथ करी? With bacteriophages. What are bacteriophages? Those viruses which infect bacteria. These are known as bacteriophages. Is it okay? What are they called? Bacteriophages. Is it okay for everybody? What is the purpose of Hershey-Chase experiment? to prove that DNA is genetic material. Yes. And for this, what did they use? Hershey and Chase, what did they use? Bacteriophage. Bacteriophages. एक्चुअली होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेजेस जब अटैक करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज दिस एंटर्स द बैक्टीरियल सेल. जैसे वो अटैच हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज अटैक्स द बैक्टीरिया, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसका? बैक्टीरियोफेज का. दिस एंटर्स द बैक्टीरिया. अब जब इसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया में अंदर चला जाता है तो बैक्टीरियल सेल जो होता है वो बुद्धू होता है, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा है और अपना उसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है. तो वो उसको उसके जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझ लेता है और वैसे ही और पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता रहता है. बेसिकली इट इज एम्पलीफाइंग और इट इज इंक्रीजिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस. Got this point? What actually is the experiment about? Alfred Hershey and Martha Chase, they carried out an experiment to prove what? That DNA is genetic material. It is a genetic material, and they use bacteriophages, basically the viruses which attack bacteria. So as soon as virus goes and attaches to the bacteria, तो वो अपना genetic material किसमें transfer कर देता है? बैक्टीरिया. Bacteria. And bacteria बुद्धू वो क्या differentiate नहीं कर पाता है? अपना जेनेटिक मटेरियल उसका. Yes. So it is not able to differentiate कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा है और उसका अपना कौन सा है, एंड वो मोर वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने लग जाता है. बेसिकली बेटा देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी कि डीएनए मटेरियल क्या होता है. कुछ लोग कहते थे कि प्रोटीन इज द डीएनए मटेरियल, कुछ लोग कहते थे कि डीएनए इज द प्रोटीन मटेरियल. So Hershey Chase did this experiment to prove कि no, protein is not the genetic material. It is actually the DNA which is the genetic material. So main purpose of doing this experiment was this only. ये prove करना है कि protein is not the genetic material. मैम वो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी तो हुआ था किससे पहले? ट्रांसफॉर्मिंग इसमें फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला. मैम एक Yes, वो ma'am. माइस वाला ना, माइस वाला. हाँ, वो माइस वाला एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में हो गया था. हर्षे चेज ने बाद में किया था, 1952 में किया था. ये बाद का एक्सपेरिमेंट है. मैम वो मैकार्टी वाला एक था मैम, उन्होंने भी तो प्रूव किया था कि प्रोटीन और ये सब नहीं है. मैकार्टी वाले ने तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, वो तो उसी का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना. उन्होंने ये बताया था कि जितने भी बायोकेमिकल्स होते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हो, डीएनए, आरएनए, वो हीट किल्ड एस सेल्स वाला ना, आर सेल्स, एस सेल्स, यस वही मैम. वाली तो बात कर रहे हो. हाँ, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं और वो बहुत इजी है, वो तो 2 मिनट में हो जाएंगे.